Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today's video for class 11 from structure of an atom. Now today's topic is de Broglie equations and Heisenberg uncertainty principle. Now first of all the question is that what is de Broglie equations? Now de Broglie equation is tell us about the relationship between the wavelength, velocity and Planck's constant. So let's we see that what is the de Broglie equations. De Broglie equation. Now first of all that according to Planck's quantum theory, Planck's quantum theory, that we know that the Planck's quantum theory E is directly proportional to mu. Now when we proportionality का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है that is h. Now E is equal to h mu. Here E is the energy and h is Planck's constant and mu is frequency. So we can write here E is energy, h is Planck's constant and mu is frequency. Mu is frequency. Now so first of all that is E is equal to h mu. And according to Einstein equation, according to Einstein's equation, that is E is equal to mc square. Now here E is the energy, m is the mass, and c is the velocity. Of light. Now this equation is first and this equation is second. From equation first and second, first and second, we get that h nu is equal to mc square, and we know that mu is equal to c upon lambda, and this is the equation third. Put the value of mu in equation third, so we get h c upon lambda is equal to mc square. Now from here c से c cut. Here next h is equal to c upon में lambda is equal to mc square. यहाँ c से c cancel out, so from here h upon में lambda is equal to mc, and from here lambda is equal to h upon में mc, and here velocity c is displaced by the velocity v. Here velocity c is displaced by velocity v. Now from here lambda is equal to h upon में mv. Now this is the de Broglie equation.
de Broglie equation, and according to this equation we can say that here lambda is wavelength, h is Planck's constant, m is mass and v is velocity. So from here we can say that the wavelength is decrease with increase of velocity, vice versa, because here lambda is inversely proportional to velocity. ठीक है, तो so we can say here this is the de Broglie equation which tell us about the relationship between wavelength, Planck's constant and velocity. So now next topic is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है क्या है। तो अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो अगर हम कहीं हमारे आसपास देखते हैं, चलते हैं, हम मूव करते हैं, कार से ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि एक्यूरेट पोजीशंस को बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है। ठीक है, अगर वो मूव कर रहे हैं तो उसकी स्पीड को बता सकते हैं हम कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो कहाँ, उनकी पोजीशन कहाँ तक अभी वो पहुंचे हैं, तो और आगे कितना टाइम वो अगर इसी स्पीड से चले, मान लीजिए कोई कार है और वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो उसकी स्पीड को हम एक्यूरेटली बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जस्ट लाइक एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल जस्ट लाइक एज इलेक्ट्रॉन। तो इनके जो एक्यूरेट पोजीशंस और मोमेंटम को हम एक्यूरेटली डिटरमाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। उसी के अकॉर्डिंग जो हेजनबर्ग थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस हम पहले इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसका यहाँ क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो मान लीजिए हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व करते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से मूव करते हुए इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन अगर यहाँ से कोई इंसिडेंट लाइट इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर स्ट्राइक कर जाती है, यहाँ से कोई इंसिडेंट लाइट इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करेगी, स्ट्राइक कर देगी, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को जाना तो किसमें, इस पाथ के अंदर था, लेकिन जैसे ही वो इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो इसकी जो पोजीशन और वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से अगर इस डायरेक्शन से इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, इस डायरेक्शन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, दिस इज द एक्चुअल पाथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसे हम कहेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल्स। जहाँ पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल्स का डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल हो, उसे उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उस प्रिंसिपल को हम क्या कहेंगे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मान लीजिए इसके लिए और एक एग्जांपल है कि मान लीजिए हमने कोई बॉल लीजिए आप, और उस बॉल को मान लीजिए इस तरह से मैंने ये चौक उछाला और इस तरह से इस हाथ में इसको पकड़ा है, तो जैसे ही वो चौक इस पाथ पे गया, अगर कोई भी चीज इस चौक से यहाँ इस पोजीशन के ऊपर स्ट्राइक करती तो वो इस पोजीशंस पे ना आके कहाँ जाता, उस डायरेक्शन में जाता, और कितनी स्पीड से जाता, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से जाता। तो यहाँ उसकी पोजीशन और मोमेंटम क्या हो गए, दोनों ही चेंज हो गए, है ना।
मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू mvr। तो यहाँ अगर उसकी वेलोसिटी, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी एंड r इज रेडियस, तो वो जिस स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कितने टाइम में, अगर वो कोई भी बॉल है, कोई भी चौक है, वो इस तरह से यहाँ इस डायरेक्शन में आए तो इसकी वेलोसिटी कुछ और थी, लेकिन अगर इसके साथ कोई भी दूसरा चौक या कोई अनदर थिंग्स स्ट्राइक करती है तो इसकी पोजीशन और इसका जो वेलोसिटी है वो दोनों ही क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस चेंज को डिटरमाइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, और वो इम्पॉसिबल के लिए उसने कहा कि जो पोजीशन और मोमेंटम है उसका प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। सो लेट्स सी दैट द व्हाट इज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन 1927 वर्नर हेजनबर्ग gave a principle according to this principle it is impossible to determine simultaneously the position and momentum of the small particle with absolute accuracy। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी के थ्रू हम किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स की पोजीशन एंड मोमेंटम को डिटरमाइन करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। नाउ एक्यूरेसी और सर्टेनिटी, if uncertainty of position is del x कि कितना चेंज हुआ उसकी पोजीशंस के अंदर, एंड uncertainty of momentum is denoted by del p. So from here, so we can say according to this principle the product of uncertainty of position and uncertainty of momentum is greater or equal to a constant value
that is h upon में 4 pi. It means the uncertainty in position and uncertainty in momentum का प्रोडक्ट या तो ग्रेटर देन होगा h अपॉन 4 पाई से या फिर उसके इक्वल होगा. सो मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस इट del x dot del p. Here del x is the uncertainty in position and del p is the uncertainty in momentum. Now is greater than equal to h upon में 4 pi. We can say shorter the wavelength, we can say that shorter the wavelength, greater is accuracy. शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर इज एक्यूरेसी. इसका मतलब जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. अगर जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी तो एक्यूरेसी क्या होगी, उतनी कम आएगी. हमने पढ़ा डी ब्रॉगली इक्वेशंस के अंदर दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और यहाँ एम वी क्या है हमारे पास, दैट इज मोमेंटम है ना. तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. डी ब्रॉगली इक्वेशन से हमने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी एंड वी नो दैट एम वी इज इक्वल टू पी एंड पी इज द मोमेंटम. So from here lambda is equal to h upon में p. From here lambda is that wavelength. Wavelength is inversely proportional to its momentum. Now we can say that shorter the wavelength, greater the momentum, है ना. और इसमें एक from here we can write shorter wavelength implies higher momentum. This will result greater uncertainty in velocity. Greater if larger wavelength implies smaller momentum which will lead in greater uncertainty in position. Now this is the Heisenberg uncertainty principle. Shorter wavelength implies higher momentum. वेवलेंथ शॉर्ट होगी, मोमेंटम हायर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.